students, welcome back. Exercise 2.1, question number 3, class 7, chapter fractions and decimal. Question number 3 says that the magic square, the sum of the number in each row, in each column along the diagonal is same. Is this is a magic square? So student, question is कह रहा है कि sum of the number along the rows, this is called rows and this is called columns. अगर हम ऐसे जाएंगे तो ये रोज आ गए 1, 2 and 3 रोज, और ऐसे जाएंगे तो कॉलम. तो कह रहा है कि along the rows, along the column and along the diagonal, ये इस तरीके से आ जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा डायगोनल. कह रहा है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है अगर इनका सम along the rows, along the column and along the diagonal, all the sums are equal, that means it is a magic square. Let us check. Row 1, this is the रो 1, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है. ठीक है, तो रो 1 क्या आ जाएगा 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11. इन तीनों का एलसीएम लीजिए, 11 आ गया, 4 प्लस 9 प्लस 2, तो कितना आ गया 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 2 15/11. ठीक है, रो 2 को चेक करते हैं. रो 2 है हमारे पास 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11. दिस इज 11, 3 प्लस 5 प्लस 7, तो ये कितना हो गया 12 प्लस 3 15/11. नाउ रो 3 को हम चेक करेंगे. रो 3 क्या हो गया 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11. दिस इज 11, 8 प्लस 1 प्लस 6. So this is 6 plus 8 14, 14 plus 1 15/11. So all the three, sum of all the three row 1, 2, 3 are same. Now column 1 आ गया, this is column 1. column 2, this is column 3. Now column 1 को ऐड करते हैं. 4/11 plus 3/11 plus 8/11. Now this is 11, 4 plus 3 plus 8, 7 plus 8 15/11. This is again 15/11. Now column 2, column 2 क्या आ जाएगा इस तरीके से. This one is your column 2, 9/11 plus 5/11 plus 1/11. Now this become 11 and 9 plus 5 plus 1. So this will again 9 plus 10, 15/11. Now column 3. Column 3 is like this, 2/11 plus 7/11 plus 6/11. So answer is 11, 2 plus 7 plus 6, 6 plus 2 8, 8 plus 7 15/11. Again this is 15/11. Now diagonal 1 D1, diagonal 1 D1. diagonal कैसा होता है, like this is the diagonals, 4/11 plus 5/11 plus 6/11. This is 11, 4 plus 5 plus 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15/11. Again it is 15/11. Now this diagonal 2 क्या आ जाएगा, diagonal 2 is 2/11 plus 5/11 plus 8/11. So 11 is the LCM, 2 plus 5 plus 8, 8 plus 2 10, 10 plus 5 15/11. So student, row 1, row 2, row 3, answer is 15/11. column 1, column 2, column 3, answer is 15/11. diagonal 1, diagonal 2 15/11. In all the cases we are getting the same answer, that means it is a magic square. तो आप आंसर लिखोगे yes, it is a magic square. Hope so this question is clear to you. Now moving toward the question number 4. A rectangular sheet of paper is 12 1/2 centimeter. Students, we have a rectangular sheet. Question में क्या है, एक rectangular sheet है like this. This is a rectangular sheet. A rectangular sheet of paper is 12 1/2 centimeter long. That means length मुझे कितनी दे रखी है ये, and 10 2/3 centimeter wide. That means what is this? This is breadth मुझे दे रखी है 10 2/3 centimeter wide. So this is the length and this is the breadth of a rectangular sheet. Find its perimeter.
So student, for this find the perimeter, we should know what is the formula for the perimeter of a rectangle. I must tell you about the perimeter. Perimeter means the boundary length of any geometrical figure. Now if I talk about the triangle, what is the perimeter of triangle? Perimeter of triangle means the boundary length. Boundary length means if this is A, this is B, this is C. जितनी इसकी लेंथ होगी A इस साइड की प्लस इस साइड की प्लस इस साइड की, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? दिस इज A plus B plus C. If I talk about the square, square boundary length, that means perimeter of square is, no need to learn the formula. You should know what is the basic meaning of perimeter. Perimeter means the total boundary length. Now square की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बाउंड्री लेंथ? If this is A, तो obviously we know that in square all the four sides are equal. That means this must be A, this must be A. So A plus A plus A plus A. 4 times A is 4A. Now similarly, when we talk about the rectangle, this is length, this is breadth, this is length, this is breadth. So perimeter क्या हो जाएगा? Length plus breadth plus length plus breadth. That means 2 times L plus 2 times breadth. Now taking out 2 common, so formula क्या बन गया? 2 into L plus B. तो what we have to find? The perimeter of rectangle. अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है पेरीमीटर किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का, दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड द टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंड वी नो दैट इन rectangle this length both are same. If this is 12 1 by 2, this must be 12 1 by 2 centimeter, and this breadth is 10 2 by 3, this must be 10 2 by 3 centimeter. Now we will first convert, हम लिखेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कितनी है? लेंथ है 12 1 by 2 सेंटीमीटर. कन्वर्ट करिए इसको, मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए. कैसे करेंगे? 12 इंटू 2, 12 2 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25 अपॉन 2 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज द ब्रेथ? नाउ ब्रेथ इज 10 2 by 3, 10 2 by 3, 10 3 ज़ा 30, 30 plus 2, 32 by 3 centimeter. So we get the length and breadth of a rectangle. Formula मैंने अभी derive कर लिया है, 2 into L plus B, 2 into L plus B. Now this is 2, length कितना है? 25 upon 2 and breadth is 32 upon 3. अब ध्यान से देखिए, एक मेथड है कि आप इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें दोनों को और फिर करें. दूसरा मेथड जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग दिस. आप इस 2 को बाहर ही रहने दीजिए. अंदर 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 6. फर्स्ट क्या है, हमने क्या करना है? 2 और 3 का एलसीएम लेना है 6. नाउ दिस 6 इज डिवाइडेड बाय 2. हमने क्या करना है? 6 को डिवाइड करना है 2 से. तो देखिए, अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर क्या मुझे मिलेगा? 2 3 ज़ा 6. ठीक है, तो 3 जो मुझे आंसर मिला, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर. क्या किया हमने? लिसन अगेन, 6 को 2 से डिवाइड किया, जो भी आंसर आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया. नाउ सिमिलर प्रोसेस, 6 को डिवाइड करिए 3 से. जब आप 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, आंसर मिलेगा 2, 3 2 ज़ा 6. तो इस 2 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 32 इंटू 2. मैंने यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन वाला मेथड यूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ दूसरा मेथड किया. एक्चुअली दिस मेथड इज यूज्ड. ठीक है, दिस इज द बेस्ट मैथड टू सॉल्व दिस बिकॉज इट इज द इजीएस्ट वन. जो लाइक फ्रैक्शन वाला मेथड होता है वो बच्चों वाला मेथड होता है. ठीक है, नाउ 3, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 5 ज़ा 15 का 1, 3 2 ज़ा 6, 6 75, और इसको किया 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा? 5 4 9 6 और 6 6 12 13, 139 अपॉन 6. नाउ इसको इससे कर दीजिए डिवाइड, तो आ गया 139 अपॉन 3 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये इससे डिवाइड नहीं होगा. अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. मिक्स फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 4 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12 और 19 है. 3 6 ज़ा 18 और एक रिमाइंडर रह गया 1/3. 46 1/3. लेट मी चेक ये ठीक है कि नहीं. मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ. 139 को मैंने किया 3 से
3 4 ज़ा 12 और 3 9 है, 3 6 18। ठीक है, बिल्कुल सही है ये, बिकॉज मल्टीप्लाई 3 6 18। ठीक है, 139/3। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमने क्या करना है। ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है। मुझे निकालना है पेरीमीटर। मैंने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे सॉल्व किया। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मैंने क्या किया। 2 और 3 का मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, 6 आ गया। नाउ 6 को 2 से डिवाइड किया, क्या मिलेगा मुझे, 3। 6 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा 3। दैट आंसर मल्टीप्लाइड टू द न्यूमरेटर। 25 इंटू 3, 6 को डिवाइड करिए 3 से, आंसर इज 2। 2 शुड बी मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करिए, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 75। इसको किया हमने 64। दोनों को हमने ऐड किया, वी विल गेट दिस। इसको मिक्स फ्रैक्शन में किया, आंसर इज 46, 1/3 सेंटीमीटर। होप सो दिस इज क्लियर। Moving towards the next question, question number 5. Find the perimeter of triangle ABE. You have to find the perimeter of triangle ABE. ABE मतलब you have to find the perimeter of this triangle. And second, the rectangle BCDE. दूसरा किसका मुझे निकालना है perimeter? This rectangle. इसका नेम है BCDE. BCDE. ठीक है, उसके बाद है whose perimeter is greater. Now what I have to do, I have to find the perimeter of this triangle and the perimeter of this rectangle. Now students, I had already told you that perimeter means the length of the boundary. Now what is the perimeter of this triangle ABCD? तो आप लिखेंगे perimeter of triangle ABE. ABE is equals to AB plus AE plus BE. तीनों साइड्स को जब मैं ऐड करूंगी तो वो मुझे क्या देगी, बाउंड्री लेंथ। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंड्री लेंथ? बाउंड्री लेंथ मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड की लेंथ को अगर मैं जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर इज द एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ triangle. Now what is the length of AB? It's 5/2. What is the length of AE? 3/5. Now what is the length of BE? 3/4. Now add this 5/2 plus 3 5 is 15. 15 plus 3. 15 plus 3 is 15 और 3 8. It's 5. 18/5. 15 plus 3. Now this 2 4 is 8. 8 plus 3 is 11/4. Now take the LCM of 2, 5 and 4. Obviously nothing निकाल लेते हैं, कहीं गलती ना हो जाए। 2 2 5 2, तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। सो LCM इज 20। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना स्टूडेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके बताती हूँ, क्योंकि मैं लाइक फ्रैक्शन वाला मेथड यूज़ नहीं करूँगी। अब मैं आपको दूसरे मेथड से दिखाऊंगी। आपने क्या लिया, एलसीएम ले लिया 20। ठीक है, अब 20 को क्या करना है, 2 से डिवाइड। 20 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। हमेशा याद रखिएगा DM, पहले डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई। 20 को मैं 2 से क्या करूंगी, डिवाइड। ऑब्वियसली जब मैं 20 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 10, बिकॉज आई नो 2 10 ज़ा 20। नाउ जो भी आंसर मिलेगा, जो भी क्वेश्चन होगा, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर। 20 को 2 से डिवाइड करिए, वॉट एवर बी द आंसर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर। नाउ 20 को 5 से डिवाइड करिए। 20 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, 5 4 ज़ा 20। नाउ दिस 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 18। नाउ 20 को 4 से डिवाइड, आंसर इज 5, 11 इंटू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 5 10 ज़ा 50, 4 8 ज़ा 32 का 3, 72 प्लस 55/20। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, क्या आ जाएगा, इन तीनों को ऐड करिए। 5 6 7 7 5 12 12 और 5 17, 177/20। एक बार फिर से मैं चेक कर लेती हूँ। 5 + 2 7 हो गए, 7 + 5 12, 12 + 5 17।
ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास, किस में आ गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दूंगी, या इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में देखते हैं इसको। अब मुझे क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ BCDE को निकालना है। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ BCD के लिए नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, नाउ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मुझे मिल गया 2 × L + B। नाउ व्हाट इज 2, लेंथ कितनी है, लेंथ देखिए इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, दिस इज द लेंथ। ठीक है, तो 2 3/4, 2 3/4, ब्रेथ इज दिस थिंग 7/6। अब मुझे इसको ऐड करना है, तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगी, 2 × 2 4 = 8, 8 + 3 11/4 + 7/6। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 इज द एलसीएम, 12 मिल गया मुझे एलसीएम। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, व्हाट इज द आंसर, 12 को 4 से डिवाइड किया 3 3 11 × 3 प्लस 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर इज 2, तो 7 × 2। नाउ व्हाट इज, इसको 2 बाहर अंदर आ गया, 33, 11 3 = 33, 7 2 = 14/12। नाउ 2 इसको ऐड करिए, 7 + 3 ये कितना आ जाएगा, 47/12। नाउ इसको मल्टीप्लाई 2 से जाएगा 47/6। नाउ 47/6 इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए कन्वर्ट, जैसे हमने यहाँ पे क्या था 8 17/20, इसको भी कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6 7 = 42, तो 5/6 42। ठीक है, 7 5/6 सेंटीमीटर क्या मिल गया मुझे, पेरीमीटर ऑफ rectangle. Now which one is, question is, what is the question, question is whose perimeter is greater. Now what I have to tell, whose perimeter is greater. Okay students, now the perimeter of rectangle is this 47/6, इसको मैंने improper fraction में लिखा है, and the perimeter of triangle is 177/20. अब now I want to know that which fraction is greater, whether 47/6 is greater or 177/20 is greater. For this what we have to do, I have to make the denominator same. For that purpose मुझे क्या करना होगा, LCM of 6 and 20 का निकालना पड़ेगा LCM। तो कितना आ जाएगा, 2 3 = 2 10 = सो इससे ज़्यादा ही होने वाला है, 2 3 = 6 3 = 60। इसका LCM कितना आ जाएगा, 60। नाउ 47/6 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, 10 से, तो ये आ जाएगा 470/60, एंड 177 को मुझे 20 को किससे करना पड़ेगा, 3 से, तो ये बन जाएगा 60 डिनोमिनेटर में। नाउ 3 7 = 21 का 2, 3 7 = 21, 22 23 का 2, 3 it's 531/60। नाउ स्टूडेंट टेल मी विच वन इज ग्रेटर, 470/60 इज ग्रेटर और 531/60 इज ग्रेटर। ऑफकोर्स 531/60 इज ग्रेटर। नाउ 531 किसका था, 177/20, और 177/20 किसका पेरीमीटर था, ट्राइंगल का पेरीमीटर था। तो ऑब्वियसली आप लिखेंगे 177, उसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देती हूँ, 20 इज ग्रेटर देन 7 5/6। सो पेरीमीटर ऑफ, you can say that perimeter of triangle is greater than perimeter of rectangle. ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा पूरा। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सलिल wants to put a picture in a frame. सलिल क्या चाहता है, अपनी पिक्चर को फ्रेम में फिट करना चाहता है। द पिक्चर इज 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड। जो पिक्चर है वो कितनी वाइड है, 7 3/5 सेंटीमीटर। वाइड मतलब क्या है कि चौड़ी है ज़्यादा, जैसे ये आ गया ना, तो ये इतनी चौड़ी है हमारी पिक्चर। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 3/10। इसका मतलब ये मेरी किसकी विड्थ है, 7 3/5 जो है, ये किसकी, द सलिल वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन द फ्रेम। द पिक्चर इज दिस मीटर वाइड, ये पिक्चर है, दिस इज द पिक्चर, ठीक है।
एंड टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन दिस सेंटीमीटर वाइड। कह रहा है कि जो फ्रेम है, फ्रेम इसका मतलब कितना है, फ्रेम इससे छोटा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली पिक्चर इतनी बड़ी है, तो मुझे क्या करना होगा, इस पिक्चर को यहाँ से कट करना होगा। तो ये कह रहा है कि बताओ यहाँ से कितना कट करें, इस पिक्चर को कितना कट करें सो दैट वो इस फ्रेम में फिट हो जाए। पिक्चर मेरी बड़ी है, पिक्चर को मुझे कट करना है सो दैट ट्रिम करके, ट्रिम मतलब पिक्चर को मैं कितना काटूं सो दैट वो मेरे फ्रेम में फिक्स्ड हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो विड्थ ऑफ द फ्रेम, पिक्चर की विड्थ कितनी है, 7/3/5 सेंटीमीटर। नाउ विड्थ ऑफ फ्रेम कितना है, विड्थ ऑफ फ्रेम है मेरे पास 7/3/10 सेंटीमीटर। अब मुझे बताना है कि मुझे कितना ट्रिम करना है। तो मैं क्या करूँगी, ऑब्वियसली कि पिक्चर को ट्रिम करना है, दैट मीन्स मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7/3/5 सेंटीमीटर माइनस 7/3/10 सेंटीमीटर, इन दोनों की करनी है मुझे सब्ट्रैक्शन। तो आई कैन राइट लाइक दिस 7×5 तो मैं इसको और थोड़ा आसान तरीके से आपको बताती हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 7/3/5 है तो मैं इट कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। नेचुरल पार्ट अलग कर दिया और जो प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट है वो मैंने अलग कर दिया। नाउ दिस माइनस का साइन और यहाँ पे आ गया, ध्यान देखना, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इट कैन बी रिटन एज 7+3/10। ये थोड़ा कैलकुलेशन इजी कर देता है, अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हैं, 7×5 = 35, 35 + 3 38/5 वैसे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको इजीएस्ट मेथड बता रही हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, 7 + 3/5, इसको खोलिए, ये आ जाएगा -7 माइनस प्लस -3/10। तो यहाँ से ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का कैंसिल हो गया, सेम साइन, अपोजिट साइन विद सेम नंबर, दे कैंसिल ईच अदर। नाउ वी गेट 3/5 माइनस 3/10। ऑब्वियसली इसको माइनस करना ज़्यादा आसान है, क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 10 और 5 का 10 आ गया एलसीएम, 10 को 5 से डिवाइड करिए 2, 3 × 2 -3, तो ये कितना आ जाएगा, 3×2 = 6 माइनस 3/10, दैट इज 3/10 सेंटीमीटर इज द आंसर। मुझे कितना ट्रिम करना पड़ेगा, 3/10 सेंटीमीटर। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। और अगर नहीं समझ आया तो आप पुराने मेथड से भी कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर दीजिए, 7×5 = 35, 35 + 3 38/5 माइनस 73/10, उस मेथड से भी आप कर सकते हैं, बट दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, यू कैन डू इट लाइक दैट। So students, moving toward the next question, question number 7. Ritu ate 3/5 part of an apple. रितु ने कितना पार्ट खाया किसी भी एप्पल का, एक एप्पल है, ये मैंने आपके लिए एप्पल बना दिया, इस एप्पल का रितु ने खाया 3/5 पार्ट। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है एन एप्पल मतलब वन एप्पल, that means apple is taken as a whole one. This is the conceptual part in this question. Then Ritu ate 3/5 part of an apple, that means 1 में से रितु ने कितना पार्ट खाया, 3/5 पार्ट, and the remaining apple was eaten by her brother Somu. तो देखिए हम लिखते हैं रितु ate 3/5 part of an apple. रितु ने कितना खाया, 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। सोमू ने कितना खाया, मैंने अभी आपको बताया रिमेनिंग पार्ट, सोमू ने कितना खाया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एन एप्पल। तो रिमेनिंग पार्ट कैसे निकलेगा, टोटल 1 माइनस 3/5। इस पूरे एप्पल में से रितु का पार्ट अगर मैं निकाल दूं तो मुझे किसका पार्ट ईटन मिलेगा, सोमू का पार्ट। तो हमने बोला रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल and the remaining apple was eaten by her brother Somu. रितु ने कितना खाया, 3/5, और सोमू ने कितना खाया, 1 माइनस 3/5। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। वी नो दैट हाउ टू टेक द एलसीएम 5। अब देखिए मैंने कहा था 5 और 1 का एलसीएम आ गया 5, 5 को 1 से डिवाइड करिए, क्या आएगा, 5। ध्यान से देखिए मैंने रखा यहाँ पे 5, 1 से डिवाइड किया, 1 5 = 5, तो मुझे आंसर क्या मिला, 5।
नाउ दिस 5 इज मल्टीप्लाइड बाय हेयर. नाउ 5 को 5 से डिवाइड करिए. 1 3 into 1. Student, you have to remember this method. You can do by making it like fraction, but आपको ये method भी सीखना ज़रूरी है. Now 5 ones are 5 minus 3 ones are 3. This become 5 minus 3 is 2/5 part. अब देखिए सोमू ने कितना पार्ट खा लिया? 2/5 part of an apple. अब आगे क्वेश्चन क्या है? How much part of the apple did Somu eat? हमने बता दिया कितना पार्ट सोमू ने खाया? 2/5 part of an apple. ये आपको समझ आ गया होगा. ऋतु खाती है एप्पल का कितना पार्ट? 3/5 पार्ट. सोमू कितना खाता है? पूरे एप्पल में से हम ऋतु का पार्ट निकाल देते हैं तो हमें कितना मिलता है? 2/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल. अब आगे क्वेश्चन है हु हैड द लार्जर शेयर? किसको लार्जर शेयर मिला? नाउ स्टूडेंट, फॉर द लार्जर शेयर आप देखेंगे ऋतु ने कितना खाया? 3/5. सोमू ने कितना खाया? 2/5. अब आप मुझे बताइए 3/5 बड़ा है या 2/5 बड़ा है? ऑब्वियसली 3/5 बड़ा है. तो मुझे ये पता चल गया हु एट लार्जर? ऋतु एट लार्जर पार्ट. आप लिखेंगे यहाँ पे ऋतु एट लार्जर पार्ट ऑफ एन एप्पल. ठीक है. अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या है? बाय हाउ मच? कितना ज्यादा खाया? ऋतु ने सोमू से कितना ज्यादा खाया? तो मैं क्या करूंगी? ऋतु के पार्ट में से माइनस कर दूंगी सोमू का पार्ट. तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन देखिए 5 आ गया. 3 minus 2 दैट इज 1/5. 1/5 पार्ट ये वो पार्ट है जो ऋतु ने ज्यादा खाया है सोमू से. सो 1/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल इज द शेयर दैट इज टेकन बाय ऋतु मोर देन द सोमू. होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको. अगर नहीं हुआ हो तो वीडियो को रीबैक करके देखते जाइए और समझते जाइए. नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 8. Okay, moving towards the last question of the exercise, that is 8th question. Michael finished coloring a picture in 7/12 hours. Michael कलर कर रहा है एक पिक्चर को और कितना टाइम लेता है? 7/12 hours. Weber finished the coloring picture, same picture in 3/4 hours. Michael कितना टाइम ले रहा है? 3/4 hours. Who worked longer? अब देखिए आप लिखेंगे Michael take time to color a picture. कितना टाइम ले रहा है? 7/12 hours. Similarly वैभव कितना ले रहा है? वैभव टेक्स सेम पिक्चर को कलर करने में कितना टाइम लेता है? 3/4 hours. Now who worked longer? कह रहा है कि कौन ज्यादा देर तक काम कर रहा है. तो obviously what you have to tell which fraction is greater. Now between 7/12 and 3/4 which one is greater? Same procedure. मैंने आपको बताया था we have to make the denominator same. We have to first make it as a like fraction. Now इसको मुझे denominator 4 और 12 का LCM कितना आ जाएगा? LCM of 12 and 4 is 12. Now I have to make it as 12. Now 3 को मैं कैसे बनाऊंगी? It can be 4 3/3 9/12. अब देखिए 3/4 can be written as 9/12. तो now 7/12 hours ले रहा था माइकल और वैभव कितना ले रहा है? 9/12. Which one is greater? 9 is greater. So that means कि who take longer time? वैभव take longer time. Why? Because 9 is greater than 9. 9 is greater than 7. तो आप लिखेंगे वैभव takes longer time to color a picture. अब now the last part of this question is who worked longer. हमने देख लिया कि वैभव भाई ज्यादा देर काम कर रहा है. बाय व्हाट टाइम फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर? कह रहा है कि कितने फ्रैक्शन ज्यादा है. तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वैभव माइकल से कितना ज्यादा टाइम ले रहा है. तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 9/12 minus 7/12. वेरी इजी. 9 minus 7 that is
सॉरी यहाँ पे 7 है, तो इट इज 2/12, दैट मीन्स 6, इट्स 1/6 आवर. 1/6 hour. What fraction of time taking longer? 1/6 fraction. Fraction क्या है? 1/6 hour. He is taking longer than the Michael. Hope so. ये आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन. तो आप इस एक्सरसाइज को रिवाइज करिए. Stay safe. Keep learning. Thank you.